اور میں غزہ میں خاص طور سے آپ کو میں بتاؤں کہ جو صورتحال ہے، جواب جو ہے ابھی بھی دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ 7 مہینہ ہونے کو آئے لیکن ابھی بھی جو حماس ہے اور جو فلسطینی ہیں وہ مقابلے پر اڑے ہوئے ہیں. بھوک ہے، پیاس ہے، ماہ رمضان ہے، سب کچھ ہے لیکن مقابلہ جاری ہے. اور یہ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے اس کامیاب حملے میں جو خان یونس میں کیا گیا، اسرائیلی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے. زخمیوں میں 8 اسرائیلی فوجیوں کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی. صہیونی فوج نے اپنے فوجیوں پر فلسطینی مجاہدین کے حملے کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں. تو اسرائیلی حکومت کی فوج کے اعلان کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں غزہ میں مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 10 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. حماس کے فوجی بازوں آزادین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مغربی شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے اطراف میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک دستے کو ٹی بی ٹی جی اینٹی میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی حکومت کی فوج نے اس سے قبل غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اپنے 3160 سے زیادہ فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا. اسرائیلی فوج غزہ میں اپنے جانی نقصان کی خبریں سینسر کر رہی ہے اور آج آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا اعلان اسرائیلی حکومت کرتی ہے. تو یہ خبر آپ دیکھیں، اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو غزہ میں صہیونی فوج پر کاری ضرب ہم نے بتایا، اور صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان نے بڑا حملہ کیا، اس کی بھی ہم نے اطلاع دی. تو بہرحال یہ تمام جو خبر ہے، صرف جنگ رکوانا ہی اپنا ادیش نہیں ہونا چاہیے، جنگ ہمیشہ کے لیے رکے. یہ بالکل یہ نجمہ بانو کہہ رہی ہیں. دیکھیے بات اتنی بھی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے، جو مانگ ہے، وہ ڈیمانڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف جنگ. اب دیکھیے سیز فائر سے اب بات نہیں بننے والی. حماس نے سیز فائر جو ہے وہ اس کو نکار دیا اور کہا ہے کہ مکمل طور پر جنگ بندی کی جائے اور جو اسرائیلی فوج کا محاصرہ ہے، گھیرا بندی ہے غزہ میں، وہ ختم کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جو مکانات وہاں پہ منہدم کر دیے گئے ہیں اس کی باز آباد کاری کی جائے اور جو بھی فلسطینی قیدی ان کو چھوڑا جائے. یہ شرطیں جو ہیں رکھی گئی اور اسی بنیاد پر جنگ بندی ہو سکتی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا یہ بالکل صحیح ہے اور یہی وجہ ہے کہ شرطوں کے ساتھ وہاں پہ یہ رکھا گیا ہے. مظہر رضوی صاحب نے کہا کہ سنا ہے سر جی کہ ترکی میں تختہ پلٹ کی سازش چل رہی ہے. کہا یہ بالکل ممکن ہے اور صرف ترکی میں نہیں، کئی ملکوں، مسلم ملک میں عوام ناراض ہے. جارڈن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کئی اور دوسرے مقامات پر مظہر صاحب پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں بہت پہلے شروع میں ہی جنگ کے بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. وہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں فوجی، وہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے اور اس کو ہٹانے کی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد سناٹا تھا. لیکن اب پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر دوسرے مسلم ممالک، کیونکہ ماہ رمضان ہے اور لوگوں تک وہاں خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں بھوک ہے، پیاس ہے اور اس میں لوگ جو ہے بے چین ہیں، پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بچے خاص طور سے مر رہے ہیں. تو غصہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ ہے. جناب شوکت صاحب پروگرام میں نہیں شامل ہو رہے ہیں، خیریت نہیں؟ بالکل خیریت ہے، لیکن میں خود چونکہ نہیں پہنچ سکا وقت پر اور انہیں جوڑ نہیں سکا. ابھی میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ شامل ہو جائیں، میں عباس سے کہوں گا کہ وہ ایک بار شوکت بھارتی صاحب سے بات کر لیں. اگر وہ 5-10 منٹ کے لیے شرکت کر لیں اور بات چیت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھیج دیتا ہوں دعوت نامہ کہ اگر وہ تھوڑا سے بھی شرکت کر لیں، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جب تاخیر ہوتی ہے. تو کہ
उनका शिरकत करना जो है बड़ा वो है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो शिरकत कर लें। नजमा बानो लिखा है हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जंग परमानेंट रुकना चाहिए और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका हक जरूर मिलना चाहिए, उनको उनकी जगह मकान सब कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल। और पूरी दुनिया जो है और हिंदुस्तान ने भी अभी इस बात की तायीद की है कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, वो फिलिस्तीनी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान से भी ये आवाज उठ रही है और जाहिर है कि इसका अपना असर होगा। और अभी जो 5 अप्रैल को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है, उसमें भी यही डिमांड रखी जाएगी, यही मुतालबा किया जाएगा कि जंग भी रोकी जाए और फिलिस्तीनियों का जो हक है वो उनको दिया जाए। हरीश कमल लिख रहे हैं हम सभी लोग अपने इन मजलूम भाइयों के साथ हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, आमीन। ये हरीश कमल साहब लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जज्बा आप देखिए कि किस तरीके से 12 बजे रात में, लेकिन हरीश कमल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका जज्बा ये है कि वो कह रहे हैं अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, ये दुआ भी हो रही। क्या एमबीएस को मुनाफिक कहना क्या सही है? देखिए अपने अपने तौर पर लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा है, लोग न जाने कौन कौन सी बातें जो है वो कह रहे हैं। ओआईसी को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ओआईसी खामोश तमाशाई क्यों बना हुआ है। एम पटेल साहब लिख रहे हैं जब इजराइल खाना पानी जाने ही नहीं दे रहे हैं तो बातों से क्या होगा? अगर फौज की तो साथ अंदर घुसे तो ही रिचार्ज को खाना पानी दवा मिलेगा, वरना देखिए एक चीज है कि यही बात कही जा रही है कि जो हुकूमत है वो कम से कम सीरिया पर सीरिया कह रहे हैं मिस्र पर दबाव बनाए कि वो बॉर्डर खोले और खाना पानी जाने दे, और इजराइल पे भी दबाव बनाए कि जंग आप अगर करना चाहते हैं तो करें, हमास से लड़े, हिजबुल्लाह से लड़े, हौती से लड़े, लेकिन आम लोगों को कम से कम रिलीफ दिया जाए, उनको कम से कम खाना पानी दिया जाए, उनके खाना पानी को न रोका जाए। तो यही डिमांड दरअसल की जा रही है, यही डिमांड जो है और इसी डिमांड को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको खबर दूं कि किस तरीके से ये मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान ने कहा है कि इसके जवानों ने गजा में फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत में 2 मरहले में शाबा के मकबूजा इलाके में वाक़े जब्दीन और जल्लुल अलाम फौजी अड्डों को फलक मिसाइल से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह लेबनान ने बयान में कहा है लेबनानी मुजाहिदीन ने गजा के अवाम की हिमायत और दमिश्क और हलब पर सयूनी दमिश्क के जारियत के जवाब में बरानियत छावनी पर बुरकान मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह लेबनान ने इस तरह हुनैन किले में सयूनी फौज के ठिकानों को रॉकेट के हमले का निशाना बनाया है। तो ये आप देख लें कि जंग किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। इसमें अली अख्तर साहब आ गए, उन्होंने कहा 6 महीने से मदद फिलिस्तीन के लिए मिस्र में है, वो मदद नहीं जा रही है तो फिलिस्तीन समाज के लिए पैसा कैसे जाएगा? ये पैसा इजराइल के काम आएगा। मोहम्मद इजराइल के लिए तो काम करता है। देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि ये सवाल जो है ये जरूर उठेगा, लेकिन अली अख्तर साहब जाहिर है कि जो फिलिस्तीनी सफीर हैं उनसे बात हो रही है और खास तौर से जो डायरेक्ट वहां पे मिस्र से बात होगी और इजराइल से कि कम से कम ये जंग बंदी की जाए और वहां पे खाना पानी पहुंचाने का कुछ किया जाए, और बातचीत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बातचीत तो होगी, मैं समझता हूं। इसके अलावा हरीश, मेरा नाम हारिस कमाल है, हारिस कमाल सिद्दीकी पूरा नाम है भाई, कमल नहीं है। हरीश आपने लिखा है SH लिखा हुआ है, आप देखें तो इसलिए जो है हारिस नहीं पढ़ने में आया है। बहरहाल ये हारिस कमाल सिद्दीकी साहब हैं। और इसके अलावा मोहम्मद फारूक मुखिया गया से
और अब्दुल रशीद साहब उन्होंने लिखा है कि एर्दोगान के रवैये से बहुत निराशा हुई। देखिए तैयब एर्दोगान के सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि ये दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है उनकी ये नुमाइंदगी करेंगे, इनके पास ताकत है, पावर है, सब कुछ है। लेकिन वाकई बहुत ही अफसोस का मकाम है कि जो मदद इनके जरिए मजलूम फिलिस्तीनियों की होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई, शायद नहीं बल्कि नहीं हुई। और कहा जाए तो गलत ना होगा कि उनकी तरफ से इजराइल की मदद हुई। लेकिन अगर जो भी बड़े मुल्क है अगर ये इनिशिएटिव शुरू में ले लेते, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, टर्की हो, मिस्र हो, अगर ये इनिशिएटिव लेते तो जंग जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो बहरहाल ये पूरा जो है वो अपडेट आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। कई और सवाल हैं, लेकिन देखिए आप देखिए आज कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान वो बिल्कुल से अटैकिंग मूड में, अटैक पे अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, यानी जंग जो है। और इसी तरीके से यमन को अगर आप देखेंगे तो यमन जो है वो रेड सी को रोके हुए पिछले 4 महीने से अमेरिका ने कोशिश कर ली, जर्मनी ने, फ्रांस ने और बर्तानिया ने, सब ने पूरी ताकत झोंक ली, लेकिन यमन को डिगा नहीं सका। और यमन में आज तारीखी मुजाहरा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां मुजाहरा हुआ है, वहां एहतजाज किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने आ रही। यूनुस साहब लिख रहे हैं हमास और कई तंजीमों ने 70 ऑपरेशन किए हैं, गजा में घमासान लड़ाई चल रही है। जी हाँ, गजा में अभी बहुत तेजी से जंग है और जाहिर है कि अगर हवाई हमले ना हो तो जमीनी अगर सतह पर देखा जाए तो जितने बड़े चाहे मरकावा टैंक हो, चाहे आयरन डोम हो, सब जो है तबाह बर्बाद हो गई हैं। और इसराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल में भी एहतजाज हो रहा है और वहां के लोग अब जंग बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है उस पर कम से कम बात हो और तब जाकर के बात बनेगी। तो बहरहाल ये तमाम जो तस्वीर है मैंने वो आपकी खिदमत में पेश की है। इस वक्त की अपडेट है परवीन गुलिबशाह यानी मोहम्मद फारूक साहब ने लिखा है सारे मुस्लिम हुक्मरान को चाहिए जंग करना चुके, अब जंग तमाम मुस्लिम हुक्मरान पर फर्ज हो गई है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक पर जंग फर्ज हो चुकी है, ये इनका कहना है। मोहम्मद इसराफील साहब आए हैं, उन्होंने लिखा है बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला जंगबंदी के बावजूद जंग नहीं रोकी जा रही है। यहाँ तक कि दुनिया के बेशतर ममालिक जंग रोकने के हक में हैं। हिंदुस्तान मुत्तहिद में शिया सुन्नी फिलिस्तीन भी, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान ने भी कहा पूरी दुनिया में, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो बड़े आलमी इदारे थे जिन पर बहुत बड़ा भरोसा था तो उस भरोसे को भी धचका लगा है, उस एतमाद और यकीन को भी झटका लगा है, क्योंकि आलमी जो बड़े इदारे हैं वो बेबस से हो गए, लाचार से हो गए। ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई हैसियत नहीं बची है और इसका जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है, क्योंकि अगर अमेरिका वीटो न करता तो अब तक जंग रुक जाती और हजारों बच्चों की जानें जो गई हैं, औरतों की जानें गई वो न जाती। तो एक तरफ तो अमेरिका जो है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, और दूसरी तरफ जंग नहीं रुकने दे रहा है। ये बहुत ही आप देखिए अफसोसनाक है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब्दुल रशीद साहब लिख रहे हैं मैंने उनकी भी कब्र देखी है जो ये सोच के नहीं लड़े कि हम कहीं मारे न जाएं। देखिए ये बिल्कुल सही है कि मौत और जिंदगी, मौत और हयात का तयन जो अल्लाह करता है, लेकिन मौत कैसे आप चाहते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मजहर रिजवी साहब ने लिखा है कि एक बात और सुनी है कि ईरान एक पॉलिसी बना रहा है कि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए और हमास के लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मिले। बिल्कुल वहां मुलाकात हुई है और शुक्रिया अदा किया है हमास ने, और ईरान ने भी ये ऐलान किया है कि उनकी भरपूर मदद की जाएगी, उनका ताउन किया जाएगा और इस जंग में उनको जो भी जरूरतें होंगी वो दी जाएंगी। ऐसी रिपोर्टें आई हैं। तो ये मदर रिजवी साहब बिल्कुल
सही है। और आप देखिए कि अगर आप ये समझते हैं कि चाइना चुप है, रूस चुप है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं अभी भी बहुत ही पुरुम्मीद हूँ ओआईसी से कि अभी नहीं, लेकिन कुछ देर बाद सही उठना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, और नहीं तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक अफरा तफरी का माहौल होगा। बहरहाल आप तमाम हजरात हमसे जुड़े। अली अख्तर साहब ने लिखा है कि ईरान ने शिया सुन्नी का एक फर्क खत्म कर दिया है, सुन्नियों की मदद कर रहा है ईरान, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। बिल्कुल। कई और सवाल आए हैं। इब्राहिम खान साहब का, अमेरिका ने आज भी हथियारों की कारी इजराइल की या क्या है, रोकनी का नाम क्या, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इब्राहिम साहब। ओआईसी मीन्स ओ आई सी। बिल्कुल। और आज दुनिया में अगर कोई मजलूम का मददगार है वो ईरान है। तो ये इनकी बात कहने वाली अख्तर साहब का। बहरहाल आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। शौकत भारती साहब शायद आज भी नहीं आ पाए, और उसकी वजह यह है कि हमने प्रोग्राम देर से शुरू किया। अगर हम 10:30 बजे करते तो वो यकीनन आते। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम जो है बहुत जल्द ये प्रोग्राम बाकायदा पहले की तरह शुरू करें। बदर रिजवी साहब ने लिखा है, और सर अमन फौज क्या है? सर अरब की ये क्या, सर समझ में नहीं आ रहा है कि अमन फौज किसके लिए? ये अमन फौज अमन कायम किया जाए और जंग बंदी को रोका जाए, इस तरीके की बातें। तो बहरहाल आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।